Now let's take our first concept of the day, which is number line. Zest IS, nurturing minds. Start. Good morning, everyone. Uh, my name is Manoj Negi. I'll be walking you through the first class of CSAT, right? Which is uh, basically हम लोग पहले class में we will focus on basic strategies, basic things, basically an overview of entire CSAT, right? And how you should approach it ideally, right? So pattern, right? Talking about the pattern, we have three sections inside CSAT, right? One is reading comprehension, another is logical reasoning and DI, right? DI stands for basically data interpretation, and most of the time आप लोग मेरे को ऐसे सुनते हुए बोलोगे LR DI, right? And the third part is quant. For this class, for this particular class, we will be focusing on this quant part first, right? We'll come to reading and comprehension later on, and then you know uh, we will basically बीच में हम लोग mix करेंगे logic reasoning and DI को. Okay, so the pattern is basically it's kind of like very simple that we have 120 minutes, right, which is approximately 2 hours, and you have 80 questions, right? And this is this is on an basically you can say like last 5 साल का हम लोगों ने analyze किया, तो we got 30 20 30 means you will have 30 questions from reading and comprehension, 20 questions from logical reasoning and DI, and 30 questions from quant. Okay, now दिस इज ऑन एन एवरेज, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक 30 आपकी रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव से ही आएंगे, 20 आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आएंगे, या फिर 30 क्वांट से ही आएंगे. सो इट वेरीज, राइट? एंड द टोटल मार्क्स इज 200, एंड या देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एज वेल कि आप हर एक 3 नेगेटिव क्वेश्चंस पे यू विल लूज 1 मार्क, राइट? एंड द पासिंग मार्क इज 33%, right? So around it's basically 66 to 67 marks. ठीक है, दिस इज लाइक फिक्स्ड कट ऑफ. इट्स नॉट लाइक आपका जो जीएस का रहता है प्रीलिम्स में कि आपका हर टाइम जो कट ऑफ होता है वो चेंज होते रहता है, राइट? सो दिस इज द पैटर्न. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम, राइट? डोंट थिंक ऑफ लाइक बीच में कोई ब्रेक रहेगा आपके पास. सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के बीच में कोई ब्रेक नहीं रहता, एंड आई थिंक एवरीवन यू गाइस आर फेमिलियर विद दैट पार्ट एज वेल. नाउ coming to next slide, which is breakdown. Breakdown is similar to this actually, कि आपके आरसी में मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, दोज आर काइंड ऑफ यू कैन से इन्फ्रेंस बेस्ड या कंक्लूजन बेस्ड, राइट? इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंने बोला कि एक पैसेज है मेरे पास, राइट, और उस पैसेज से आप क्या कंक्लूड करते हो या फिर ऑथर क्या कहना चाहता है, राइट? सो दैट इज योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? नाउ लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई इज बेसिकली कि आपके पास एक चार्ट दिया रहेगा, राइट, एंड यू हैव टू फाइंड, एंड उस चार्ट के बेसिस पे आपके पास 3 या 4 डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे. ओके, एंड आपको ये बताना है कि लाइक and you have to find basically the correct answer for that. Now the thing is, why? Okay, we'll come to that later, but maybe. And the quant is you have 37.5% of the entire syllabus, not entire syllabus, entire test consists of quant, right? Sorry. And number systems is the most asked part, right? And the basic concept is another. And the reason I have taken basic concept here is because a basic concept mein matlab, you have like you can say number system is one of the basic concept, or in last जैसे भी 2023 में in last I think हमारा जो prelims अभी हुआ है, right, recently, उसमें you might have seen कि इस बार उन्होंने पूरा change कर दिया pattern, right? So but if you have your basics clear, right, at that point, then you can expect a good a good marks actually from quant part. Now the thing is कि why UPSC asks you questions on these 3 topics, right? And obviously in each and every lecture, right, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, we will focus on 3 things. One is what, another is how, and third is why. So what means कि like वो concept क्या है या फिर वो चीज मतलब है क्या actually में, right? How मतलब वो चीज कैसे work करती है, right? And why means like वो है क्यों, वो exist क्यों करता है, right? And you have to focus on these 3 questions. When जब आप इन 3 questions को अच्छे से पढ़ लोगे, right, in any form, you will be able to answer
each and every questions around that concept, right? For instance, अगर मैंने आपको बोला probability, right? Probability क्या होती है? You have to answer that. You have to obviously वो एक basic चीज होती है कि right probability क्या होता है? How that probability works, right? That वो आपको ये बताता है कि वो probability work कैसे करती है चीज. ठीक है, ये तो इंट्रो हो गया, ये आपका मेन इंजन हो गया, राइट? नाउ व्हाई most of the actually students का होता है ना कि like what and how may like they finish their concept, right? But I would suggest you go to the why as well. Why? Because you go to this concept because उससे ना ये भी पता चलता है कि like उसका यूज केस क्या है, राइट? और उसके टर्म्स में क्या होता है कि आप आपका फाउंडेशन बन गया, राइट? नाउ यू कैन, अगर उस फाउंडेशन के अराउंड आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा, राइट, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट? नाउ थिंग इज कि why these three sections are important, why UPSC asks you, you know, questions in these three concepts. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने बोला आरसी, राइट? आरसी क्यों पूछते हैं? द रीजन इज दैट लेट्स से you become a civil servant, right? You are building a policy, let's say under finance minister, right? So let's say in reading comprehension आपके पास एक बहुत बड़ा, like you have three, maybe not three, actually you might have 100 to 100 pages of reading comprehension, right? उसमें से आप क्या समझ पा रहे हो, like how fast your reading capability is. क्या आप हर एक पैराग्राफ को, you know, उसमें से आप इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हो क्या, उसको ब्रेक डाउन कर पा रहे हो क्या? दिस आरसी टेस्ट्स दैट क्वालिटी, राइट? लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लेट्स से इन द सेम एग्जांपल, राइट? कि यू नो आपके सीनियर आए आपके पास एंड आपको बोला कि यू नो दैट वी आर थिंकिंग ऑफ दिस बजट जो हम लोग इस कमिंग महीने में पास करने वाले हैं. नाउ यू हैव टू एनालाइज इट, राइट? उसमें ऑब्वियसली आपके पास रहेगा कि लेट्स से इस साल टैक्स कलेक्शन इतना हुआ या फिर पास्ट 5 सालों में टैक्स कलेक्शन कलेक्शन इतना हुआ, तो उसका एक चार्ट बनेगा, राइट? कि लेट्स से 2018 में इतना हुआ, 2019 में इतना हुआ, 2020 में वी सॉ अ ह्यूज पीक, राइट? एंड लेट्स से इन 2021 में उससे थोड़ा डाउन हुआ. नाउ यू हैव टू, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन आपको ये टेस्ट करता है कि आप ये इस चार्ट को अच्छे से आप एनालाइज कर पा रहे हो क्या, राइट? एंड इट कैन बी एनीथिंग, लाइक फॉर इंस्टेंस ये तो मैंने आपको बोला टैक्स कलेक्शन, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन कंक्लूड कि लाइक इस ईयर में हमको क्या करना चाहिए, whether we have to increase it or whether we have to decrease it. Talking about quant is important because ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत समझो कि लाइक आपको अगर यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से एक नंबर दिया गया, लेट्स से 343, इसकी पावर अगर 7 है तो उसका यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा, राइट? एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लाइक डोंट डू इट. बट अगर एक बेसिक क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे व्हेन यू विल बिकम अ सिविल सर्वेंट, राइट? बट these type of questions helps you in analyzing things. Your analytical ability becomes very good, right? Remember that. तो वो आपको basically these three sections, right, they prepare you to become a good civil servant, not a good, actually a better excellence, a better civil servant than your remaining peers, because you will be, अगर आप उसी 300 पेजेस की रिपोर्ट को पढ़ोगे, right, you will be able to do it very quickly from RC. By having RC based skills you will be able to analyze the pattern or any data, actually, right, using this concept or using this section, and you will be able to analyze the numbers analytically, right, using this section. Okay, so coming to next part. Okay, normally what I previously used to do is when I had some students, right, on CSAT, I used to actually define those concepts into these three sections: do or die, should do, and 99 percentiles. Do or die मतलब अगर आपने ये किया तो you can expect a मतलब passing mark type का, like आपके पास 66 67 marks आ जाएंगे. Not 66 actually, I will say in range of 60 to 70, right? Should do अगर आप करोगे then you can expect around 70 to 90 marks. And 99 percentile करोगे, right, you will have actually good, and you will be in like top 1% or top 5% of the public, correct, of the aspirants actually who are giving the exams. The thing here is in 2023 this all thing changed.
do or die, I would not say actually now this as do or die. I will say this as basic concept. Remember we were talking about basic concepts अभी थोड़ी देर पहले, right? पिछले वाली slide में. So these are those topics that tests your basic concepts. Now the thing is, right? In 20, I think it started from 2022 कि what UPSC did, they started combining three concepts, right? For instance, जैसे आपके पास एक question रहेगा, वो क्वेश्चन रहेगा आपका लेट्स से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का. सो दिस इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन पीएनसी, राइट? परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रहेगा. उसके अंदर एक हल्का सा दे विल इंट्रोड्यूस सम कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज अलोंग विथ नंबर्स. और ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? ये एक क्वेश्चन हो गया. अनदर टाइप कैन बी समथिंग लाइक एक आपका नंबर सिस्टम हो गया और एक सीरीज एंड सीक्वेंस, और उसको एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स कर दिया, राइट? सो there are questions like this. We will work on those, right? We will do those in the coming session, right? In the coming slides. So yeah, so this is basically the breakdown of that entire quant part. We'll be focusing on the quant part first, then we will slowly move towards RC and LR and DI. LR and DI again, it's logical reasoning and data interpretation, right? Now, what should be your strategy? A lot of people ask me this question actually, that what we normally do quant first, or we should do RC first, or we should do LRDI first, right? So most of the people, what they do is, they will say कि what, मेरा RC बहुत अच्छा है, तो मैं RC बाद में करता हूँ, right? पहले मैं quant कर लेता हूँ ताकि मेरे पास टाइम रहेगा RC करने के. The thing is, there is no such thing as strategy like that will work, especially in exam, right? And the reason behind is that very simple. Okay, let me maybe give you an exercise. Okay, let's say this is a circle. Now I'll ask you to divide this circle into, let's say, two equal parts, and it's pretty simple, right? आप सेंटर से कोई भी एक लाइन खींच दो, कहीं भी लाइन खींच दो, कुछ भी लाइन चलेगा. आप ये भी खींच सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी खींच सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप ये भी खींच सकते हो. एनीथिंग, राइट? सो इट्स डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नाउ लेट्स से इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि इसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, हाउ विल यू डू इट? पॉज द वीडियो, एंड देन कम बैक टू द आंसर. सो द आंसर टू दिस इज, आप दो, जैसे यहाँ पे आपने एक सेंटर से एक लाइन मारी थी, राइट? आप यहाँ पे सेंटर से दो लाइन मारोगे, ठीक है? एंड ये कैसे भी कर सकते हो. मैंने यहाँ पे एक्स बनाया है, आप प्लस बना दो, तो 4 भाग में डिवाइड हो गया, राइट? अगर मैंने आपको बोला कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आपको इस ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप कैसे करोगे? नाउ द assumption I'm taking here is कि ये दोनों ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. इक्विलेटरल मतलब ये होता है कि ये साइड सारे सेम है. मतलब अगर ये 7 सेंटीमीटर है ना, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है? नाउ लेट्स, अगर मैंने बोला आपको कि आपको इस ट्राइंगल को आपको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, हाउ विल यू डू इट? इट्स प्रीटी सिंपल. आप कोई भी एक सेंटर से आप एक ऐसे लाइन मार दोगे, या फिर आप ऐसे भी मार सकते हो यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी मार सकते हो, राइट? इट्स योर चॉइस एक्चुअली. नाउ लेट्स कमिंग टू आवर फोर्थ क्वेश्चन कि मैंने आपको बोला कि सेम ट्राइंगल है, नाउ यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक टू द आंसर. सो द आंसर टू दिस इज कि आप एक सेंटर पकड़ो ट्राइंगल का, एंड वहां से ऐसे 3 लाइन मार दो, ठीक है? सो यू विल हैव 3 इक्वल पार्ट्स, 1, 2 एंड 3. ओके, नाउ दिस इज डन. कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज एन एल शेप, ठीक है? यू कैन से दैट दिस इज अ काइंड ऑफ अ पजल एज वेल. ये एक्चुअली सारे पजल ही दे रहा हूँ आपको. ये फिफ्थ क्वेश्चन आपका, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक टू द आंसर. ओके, सो द आंसर टू दिस इज, राइट, कि आप क्या करो, जैसे यहाँ से सपोज आपके पास ये एक लाइन है ऐसे, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे एक एल बना दो. तो आपका एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया. सो दिस इज योर वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट, एंड दिस इज योर सेकंड पार्ट, एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट, एंड दिस इज योर फोर्थ, राइट? आई मीन यहाँ पे एक्चुअली सेम दिख नहीं रहा है बिकॉज एल मैंने एक्चुअली थोड़ा अजीब सा बनाया हुआ है, राइट? एक्चुअली अगर आप इसको पूरा स्क्वायर की तरह बनाओगे, राइट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड कि वो 4 के 4 आपके शेप्स इक्वल है, ठीक है? नाउ लेट्स डू वन मोर. एक रेक्टेंगल है, ठीक है? आपको इस रेक्टेंगल को आपको 11
इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और मे बी नॉट लेट्स से 11, लेट्स मेक इट अ सिंपल वन, आपको इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. पॉज द वीडियो एंड देन कम बैक टू द आंसर. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू व्हाट यू वुड हैव डन इज, आपने कैसे लाइन खींचा रहेगा. तो इसमें भी अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हो रहा है, तो आपने कुछ ऐसे लाइक क्रॉस क्रॉस करके खेला रहेगा कुछ तो, राइट. व्हाट इफ आई टेल यू द आंसर टू दिस इज प्रीटी सिंपल. आपको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. आप क्या करो, 9 लाइन खींच दो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेट्स से 9. तो आपके 10 इक्वल पार्ट हो गए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now why I took this strategy, sorry, now why I took this entire exercise actually, the reason is very simple. अगर आप इस पूरे अगर आप इस चीज को वापस देखोगे, राइट, जो अभी हमने एक्सरसाइज किया है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ वेरी इजी वन, वेरी इजी वन. सेकंड उससे थोड़ा टफ था, बट स्टिल यू कैन से दैट इट्स अ वेरी इजी कैटेगरी बिकॉज 99% people, they will be able to solve it. Now coming to this fourth question, this was extremely difficult question actually. So जिन्होंने बनाया, good, very amazing, right, but those percentage of people will be somewhere around like 1 to 10 percentage, right? That's why it's very difficult. Now what if I tell you that the next question that I took, it was a very easy one. The thing is, right, UPSC plays the same game actually. UPSC क्या करता है, आपको पहले easy question देगा. It's not UPSC actually, it's every exam provider. वो क्या करता है, पहले आपको easy question देंगे, फिर medium, फिर hard, फिर difficult, and then they will throw a easy one question in between. तो हम लोग perceive क्या करते हैं कि यार सारा इजी था, राइट, अभी सब हार्ड बन गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑटोमेटिकली हार्ड होगा, राइट. नाउ सेइंग दैट, नाउ डू यू रियली थिंक, जो लोग बोलते हैं कि यार मेरा आरसी अच्छा है तो मैं उसको बाद में करूंगा एंड क्वांट पहले करूंगा, नो, यू शुडंट. योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि आप पहले वो करो जो आप जिस पर आप अच्छे हो, ठीक है. नाउ सम ऑफ यू माइट बी वेरी गुड इन क्वांट, सो डू क्वांट फर्स्ट. Some of you might be very good in RC, and most of the aspirants are very good in RC because they have this habit of reading, right? Reading from, let's say, any geography concept or any history concept, right? They have a habit of reading, correct? Or any, if there is any engineer, right, engineering background, उसका LRDI अच्छा होगा as compared to RC, right? So जो भी आपका अच्छा section है, right, do that first. बिकॉज इसमें क्या होता है ना, अगर आपका सपोज आरसी अच्छा है, राइट, और अगर आप क्वांट पहले कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका आरसी भी कम हो जाएगा. बिकॉज इन द रिसेंट एक्सरसाइज वी सॉ इट, राइट, हाउ दिस हाउ आवर ब्रेन परसीव्स दिस एज अ डिफिकल्टी. जो डिफिकल्टी लेवल होता है हमारा ब्रेन कैसे परसीव करता है, इवन दो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, राइट. नाउ सेइंग दिस, so this should be your strategy actually, right. Now let's take our first concept of the day, which is number line. So number line में क्या होता है ना, you will see a lot of actually when I was myself preparing for CSAT, right. तो number line के लिए मैंने देखा कि there were a lot of trees, right. Some people even in YouTube अगर आप देखोगे, right, I'm not saying everyone but most of the tutors, right, वो लोग पूरा ऐसा बनाते हैं कि लाइक रैशनली होता है, इरेशनली होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, रियल नंबर ही होता है. आई वुड सजेस्ट, आप इसको ना सिर्फ दो नज़रिए से देखो. नंबर लाइन में सिंपल आपके दो होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. दैट्स इट, ठीक है. अभी रियल नंबर पता है क्या होता है, रियल नंबर मतलब होता है, आप ऐसा समझो, आप एक रूलर, जो स्केल होता है, राइट, आपका रूलर, वो लो खींचो, एंड लेट्स से बीच में कहीं पे भी आप जीरो पकड़ लो, ठीक है. तो जीरो से जैसे आप राइट को जाओगे वो चीज प्लस होते जाती है, और जैसे आप जीरो से लेफ्ट की तरफ को जाओगे वो चीज माइनस होते जाती है. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. इसका मतलब ये कि अगर यहाँ पे आपका वन रहेगा, यहाँ पे आपका टू, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फोर, एंड जीरो से जैसे आप लेफ्ट की तरफ को जाओगे यू विल हैव -1, -2, -3, -4, एंड वो जाते रहता है, राइट. सेम गोज फॉर राइट हैंड साइड एज वेल. नाउ एनी नंबर which can be represented on a number line is known as real number. ये बात ध्यान रखना. अगर सपोज मैंने बोला आपको what is 3/4, not 3/4, let's again do an exercise actually. Let's do again an exercise, right. I will take some numbers. Let's say I'll take 2/10, 5/10, 10/10,
इनको जो मैंने बोला भी राइट, 2/10, 5/10, 10/10, 20/10, इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। ठीक है। फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है, अगर सपोज मैंने बोला आपको 1/3, तो इसका मतलब ये होता है कि एक चीज को मैंने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। कि सपोज एक पिज्जा लिया मैंने और उस पिज्जा को 3 भाग में डिवाइड कर दिया, जैसे भी हमने अभी एक ट्रायंगल को किया था, राइट? सो दैट ट्रायंगल यू कैन से दैट इट्स 1/3। तो जैसे अगर हमने एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को हमने, एक पूरे रेक्टेंगल को 10 भाग में डिवाइड किया, सो दैट इज 1/10। ठीक है। जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, एंड जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ना इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। अब बोलोगे कि यार 2/10 हम लोग नंबर लाइन पे कैसे बना सकते हैं? यू कैन, आप बना सकते हो। 2/10 मतलब क्या है? 2/10 मतलब क्या होता है? अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने जाओगे, राइट, दिस इज नथिंग बट योर 0.2। अगर आप इसको डिवाइड करोगे, आप कैलकुलेटर में भी डालोगे, राइट, यू विल से दैट 2/10 इज 0.2। सो 0.2 विल बी समवेयर अराउंड हियर। करेक्ट। अब इसको इस अगर आपको इस नजरिए से देखना है इसको, कि ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, तो मेरा 2/10 विल बी, अगर आप रूलर में देखोगे, राइट, यू विल हैव 0 से 1 के बीच में आपके 10 सेक्शन रहेंगे टोटल। तो 2/10 विल बी मतलब उस पूरे 10 जो पार्ट किए हैं उसमें जो पहला 2 है वो मेरा 2/10 है। ठीक है। तो आप उसको बना सकते हो, राइट। व्हाट अबाउट 5/10? आप 5/10 को भी बना सकते हो। 5/10 इज 0.5। आप इसको भी बना सकते हो। अगेन दिस इज अ रियल नंबर। 10/10 इज 1, राइट। 10 ऊपर है, 10 नीचे, आप डिवाइड करो दोनों को तो दैट विल बिकम 1, राइट। सो 1 इज हियर। 20/10 इज 2। आप 2 भी देख सकते हो। नाउ सम ऑफ यू माइट से, जो एक्चुअली में थोड़ा, जिनको थोड़ा मैथ्स का पता है, यू माइट से कि मनोज व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब, जिनको नहीं पता, इट्स ओके, वी विल कम ऑन टू दैट लेटर ऑन। बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब ऐसे समझो कि बेसिकली जिसका मैंने स्क्वायर किया, राइट, उसी का अगर मैं उल्टा कर दूं तो we'll come back to that actually, just don't get confused now right now. So square root of 2 is 1.414। आप 1.414 भी बना सकते हो इधर, राइट। जिनको मैथ्स पता है, राइट, उनके बारे में उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि थिंक ऑफ इन दिस लाइक दिस वे, कि आपके पास ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है। आप यहाँ से 1 यहाँ जाओ, यहाँ से 1 ऊपर जाओ, एक ऊपर जाओ 1। तो आप यहाँ पे अगर आप कंपास रखोगे आपका, ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप ऐसे खींचोगे इसको, सो दिस विल बी योर 1.4, दिस विल बी योर रूट 2। जिनको नहीं समझा, विल कम बैक टू दिस ऑन द सेक्शन ऑफ ज्योमेट्री, जहां पे मैं आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। ओके। नाउ दिस बीइंग सेड, रिमेंबर दिस पूरा पार्ट, ये बात समझना, नो वन विल टेस्ट यू एक्चुअली इन द एग्जाम कि यार ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या, ये रैशनल है क्या, ये रैशनल है क्या, या फिर ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। नो वन विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस। ठीक है। दीज आर जस्ट योर बेसिक। और हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई विल सजेस्ट इज इन द कमिंग क्वेश्चंस, राइट, हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, बट with concept, with example, rather than just teaching you theory. Actually my aim is to basically teach you guys how to apply it in the real world। ठीक है। उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, जो बेसिकली जो मैं वाई बोल रहा था ना, व्हाट, हाउ एंड वाई, राइट, मैंने आपको व्हाट बता दिया है, राइट, ये कैसे फंक्शन करता है और क्यों है ये चीज, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है। ओके, सो दिस इज योर नंबर लाइन, राइट, remember this part। Now coming to factors, actually, what are factors? Now factors में पढ़ने से पहले I will suggest कि आप, you know, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। फैक्ट, उसको बोलते हैं LCM और HCF। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए ना आपको थोड़ा टेबल पता होनी चाहिए एक्चुअली, जो याद है बचपन में पढ़ते थे, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, राइट। अभी फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको, ओके, क्यों पे मैं आता हूँ बाद में, क्यों मतलब दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इस पर आता हूँ बाद में। पहले वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इट इज एंड हाउ इट वर्क्स, राइट। तो फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर सपोज मैंने आपको बोला, लेट्स से 2 नंबर लेते हैं, 15, 32 एंड 30। ठीक है। आपको मैंने बोला 15 के फैक्टर बताओ,
तो आपको पता है क्या करना है 15 को आपको सबसे पहले आप ऐसे समझो 15 जैसे आप सोचते हो सबसे पहले नंबर क्या आता है 15 में आता है 5 into 3 राइट। क्या इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? आप समझो जरा 5 और 3 को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दीज आर वट वी कॉल एज प्राइम नंबर राइट। रिमेंबर आई टोल्ड यू इन लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे नंबर्स के बारे में। सो दिस इज दैट। सो कमिंग टू प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज बेसिकली जिसको और तोड़ नहीं सकते, जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे 2, क्या हम 2 को और ब्रेक कर सकते हैं? नहीं। व्हाट अबाउट 3? नहीं। 5, 7, 8, 8 को हम कर सकते हैं बिकॉज 8 इज बेसिकली 2 into 4 राइट, ब्रेक कर सकते हैं। 9 को भी ब्रेक कर सकते हैं 3 into 3। 10 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? यस, 2 into 5। व्हाट अबाउट 11? वी कैन नॉट ब्रेक 11। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। बेसिकली अगर आप इसका डेफिनेशन देखने जाओगे राइट, प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये होता है कि someone which is a number which is divisible by itself and 1, that's it। ठीक है। So prime number 2, 3, 5, 7 and 11 right। What about 1? क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं। 1 is neither a, it's not a prime number actually। I was going to say composite number but मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो 1 is not a prime number right। Why it is? फैक्टर्स जब आप बनाते हो ना, कमिंग बैक टू अवर इनिशियल कॉन्सेप्ट राइट, जब आप फैक्टर आप बनाते हो राइट, फैक्टर आप इस तरीके से बनाओ कि लाइक आप उसको पूरा नीचे तक ब्रेक कर सकते हो। नीचे तक ब्रेक कर सकते हो मतलब उस लेवल तक उसको ब्रेक कर सकते हो कि इसके बाद अब क्या, इसके बाद हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते इसको। फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मैं बोला 32 समझ कर सबसे पहला नंबर क्या आता है आपके दिमाग में? अ लॉट ऑफ पीपल विल से 8 into 4 or some of you will say 16 into 2 right, which is both of them are fine। now let's take 8 into 4। क्या इसको मैं और ब्रेक कर सकता हूँ? यस, और ब्रेक कर सकता हूँ। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 into 2 into 2 राइट। और 4 को कैसे लिख सकता हूँ? 4 को मैं लिख सकता हूँ into 2 into 2 राइट। सो ये आपका 8 है एंड ये आपका 4 है। तो अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना ये सबको तो वापस 32 आएगा। क्या 2 से और मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि नीचे? नहीं ब्रेक कर सकता हूँ राइट। सो दीज आर माई फैक्टर्स। ठीक है। बट हाउ अबाउट 30? क्या मैं 30 को ब्रेक कर सकता हूँ? 30 को यस मैं ब्रेक कर सकता हूँ। बट सबसे पहले आप सोचो, सबसे पहले आप कैसे ब्रेक करोगे 30 को? लॉट ऑफ यू सेड 10 into 3 विच इज अमेजिंग राइट। अब 10 और 3 में कुछ और है ऐसा जो मैं किसी को ब्रेक कर सकता हूँ? यस, मैं 10 को ब्रेक कर सकता हूँ। 10 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 2 into 5। तो ये 2 into 5 हो गया और इंटू 3। सो ये आपके फैक्टर हो गए। तो 30 का फैक्टर क्या होगा? 2, 5 और 3। 15 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 3। 32 का फैक्टर क्या होगा? 8 सॉरी 32 का फैक्टर होगा 2 5 बार। ठीक है। नाउ दिस इज हाफ करेक्ट एक्चुअली। व्हाई दिस इज हाफ करेक्ट? बिकॉज अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आप किसी को भी 1 से इंटू करते हो राइट, तो व्हाट विल बी योर आंसर? लेट्स अगर मैंने बोला 10 into 1 तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर विल बी 10। सिंपल एज दैट। अगर मैंने बोला जैसे 100 into 1 कर रहा हूं मैं, तो आंसर विल बी अगेन 100। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो, कितना भी छोटा नंबर ले लो, अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आता है राइट। तो अगर इन सब केसेस में अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा राइट। सो दैट्स वाई रिमेंबर कि 1 तो हमेशा फैक्टर होता ही होता है राइट। उसके बाद भी और भी फैक्टर्स होते हैं। सो जैसे 15 के केस में 5 3 फैक्टर तो था ही था, 1 भी फैक्टर है। 32 के केस में 2 और 1 फैक्टर है। 30 के केस में इट्स 2 5 3 एंड 1। ओके, so remember that we will come to LCM and HCF। I would suggest we will come it to will come later on this। और now let's do one more। इस यही सेम ऊपर वाला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, आपको बताना है 32 और 30 में इनका LCM क्या है और HCF क्या है। अगर आप कर सकते हो इट्स गुड, नहीं कर सकते तो लुक हियर। तो व्हाट इज LCM हियर? अभी आप वापस इसमें देखो, आप यहाँ पे बनाओ 32 को। 32 का क्या है? 2 5 बार 2 1 2 3 4 एंड 5। एंड 30 का क्या है? इट्स 2 into 3 into 5। मैं 1 into नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके कुछ फर्क पड़ता नहीं। चलो एक काम करता हूँ, 1 into मल्टीप्लाई कर देते हैं। या 2 आपका HCF है या LCM है?
आपका 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आपका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट? सो द एचसीएफ इज योर 2। बेसिकली दोनों में आपको ये देखना है कि सबसे कॉमन कौन सा है, सबसे बड़ा। अब यहाँ पे आप कोई ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है कि लेट्स अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, राइट? अगर सपोज मैं 32 और 15 लेता हूँ लेट्स से, अब दोनों में तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा? तो इस केस में एचसीएफ क्या होगा? 1, क्योंकि 1 है उधर, राइट? इट्स नॉट लाइक कि 1 आप एलिमिनेट कर रहे हो प्रॉब्लम से, आपका 1 उधर है, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ विल बी 1, ठीक है? टॉकिंग अबाउट एलसीएम, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ दिस? द एलसीएम इज बेसिकली, आप ये दो आपका ये कॉमन है, राइट? इसको अलग रखो, सो दैट विल बी योर 2। एक मिनट में नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो दैट विल बी योर 2 इनटू आपका पूरा रिमेनिंग पार्ट। तो ये कितना है? 2 2 3 4, सो 1 2 3 4 इनटू आपका 3 और 5, आप वो भी मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी 480। सो दीज आर द फैक्टर्स बेसिकली। इसमें हम लोग और काम करेंगे आगे जाके, वेल बिकॉज वी विल हैव सम क्वेश्चंस। अब हमने हाउ तो पढ़ लिया कि लेके कैसे वर्क करता है, राइट? एंड ये होता क्या है, व्हाट इट इज। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। अगर आपने कभी लेट्स से आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हो, राइट? आपने कभी कभी देखा रहेगा कि आपने कभी देखा रहेगा, राइट? ट्रैफिक सिग्नल पर आप रुके हो, आपने राइट का इंडिकेटर दिया है एंड आपके साथ साथ सामने वाले ने भी राइट का इंडिकेटर दिया है। नाउ यू हैव टू फाइंड अ टाइम जब तीनों का इंडिकेटर सेम टाइम पे ब्लिंक होगा। जब आप अगर आपको वो निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो अगर सपोज आप मैंने आपको यहाँ पे ये बोल दिया कि जो पहला वाला स्कूटर है, राइट, उसका राइट का ब्लिंक होता है इन एवरी इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स, दूसरे वाले का होता है इन एवरी इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड, और चौथे वाले का होता है इन एवरी इंटरवल ऑफ लेट्स से 1 सेकेंड, लेट्स से फास्ट ब्लिंक करता है, ठीक है? तो 3 स्कूटर हैं आपके। एंड मैंने आपको बोला कि ऐसा कब होगा कि तीनों का, ऐसे कौन से टाइम पे, अगर अभी 11 बजे है तो ऐसे कौन से टाइम पे उन तीनों का जो राइट का इंडिकेटर है वो ब्लिंक होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का एग्जांपल लोगे, ठीक है? तो इस केस में आप मेरे को, आप पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से, देन कम बैक टू द सॉल्यूशन, राइट? सो द सॉल्यूशन इज दैट यू विल यूज एलसीएम फॉर दैट। सो आप एलसीएम लोगे किसका? यू विल यूज 1 2 and 3। यू विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस, द एलसीएम इज 6, ठीक है? सो आप इसका एलसीएम लिया, व्हिच इज 6। तो इसका मतलब क्या कि अगर अभी 11 बजे हैं तो 11:06 पे वो वापस एक साथ ब्लिंक करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे यूपीएससी को पता है, ये सब बच्चों को पता है, राइट? तो व्हाट विल दे डू इज दे विल आस्क यू वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट विल दे विल डू इज वो बोलेंगे आपको कि अगर अभी 11 बजे हैं, राइट, और 12 बजे तक पिछले 1 घंटे में तीनों स्कूटर जो हैं या तीनों बाइक जो हैं उनका राइट इंडिकेटर कितनी बार कोइंसाइड हुआ है या कितनी बार सेम टाइम पे जला है, राइट? तो यहाँ पे आपका क्लॉक और नंबर सिस्टम आप देख रहे हो कैसे दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मर्ज किया हुआ है, राइट? तो वहां पे आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पता है हर 6 सेकंड में आपका ब्लिंक होता है, राइट? तो आप हर 1 मिनट में निकालो कि 1 मिनट में कितना ब्लिंक होगा, या फिर नॉट इवन 1 मिनट, राइट? 1 घंटे में आपके पास रहते हैं कितने, 3600 सेकेंड। तो 3600 डिवाइड बाई 6, दैट विल बी योर नंबर ऑफ टाइम्स दैट इट विल ब्लिंक साइमल्टेनियसली, तीनों का, ठीक है? So this is the factors basically. This is how UPSC tests you. Zest IAS, nurturing minds.